As I said, these notes which I'll be sharing with you this week are starting with Boolean data type and string data type. Though in my last lecture I have spoken about these data types with you. Okay, just let's do the formality of going through the notes. Okay, that it will give me the sequence actually in that case. We can use this data type to represent Boolean values. The only allowed values for this data type are true and false. Internally, Python represents true as 1 and false as 0. That means internally, when you make a variable, like you have made, like you see, we have made a variable b, and we are giving true to b. So, though we have written true, in the computer's memory, Python will store this value true as 1. You know, it will store 1 as value for b. Okay, that's how Python internally represents Boolean value. True is represented by 1 and false is represented by 0. This aspect you need not worry about. You just be concerned that Boolean also have true and false. When we give the type function to get to know the type of our variable b, okay, we would get the answer bool. Okay, it would be written as class bool. That is, our variable b is of Boolean type. We have another example on Boolean data type for you. How would we be using Boolean data type? This concept, this particular line over here, is something that we'll be learning later on. But the example is not very difficult. So I know that we have not used or learned this operator less than till now formally. But when we casually, if we go through this example, we'll understand. We have created a variable a, giving the value 10 to it. We have created another variable b, giving the value 20 to it. So keep in mind a is 10 and b has a value 20. Here in this statement, what we see now, this is what you have to understand. In this statement, the computer will first check whether a is less than b. Now, a less than b means the computer is not comparing the alphabet a with b, please. We have written variable names over here, a and b. So the computer, when it sees you have mentioned variable names, okay, it will compare the value of a10 with the value of b20. So the value of a10 is less than 20. The answer to this condition, this called as condition, is true, yes, because a is less than 20. And this answer true will be stored in this variable c. So the answer of this comparison is a Boolean value true, and this Boolean value true is stored in c. So when we print c, we get the output true. I repeat, when we would print c, we would get the output true. Let us do this example on the computer. We have the Python ideally with us, so we are starting. Now this time I am writing a equal to 20 for a change, b equal to 10. I am changing the example. Now this way what would happen is, you would have one example in the notes, two, you have another example given by me over here. So in a way, you have two similar examples which will help you to revise the concept better. Variable a has the value 20, b has the value 10. And I am writing c equal to a less than b. That means I am telling the computer, you please check whether a is less than b and tell me, give me the answer, I'll store it in c. Now, I repeat, when you're comparing a with b, you are actually comparing the value of a with the value of b.
you're not comparing the alphabets A with B. The value of A is 20, variable A is 20, and the value of variable B is 10. So now, is A less than B? Okay, you give me the answer as yes or no, or true or false in the chat box, please. Please give me your individual answers to this condition in the chat box. Either yes or no, or true or false. Okay, my intention of asking these simple questions in between is to ensure that you are paying attention. You are there with me in the lecture and paying attention. Okay, please understand that. Yes, your answers are correct. No, false, false, yes. And this what you said, answer no or false. Okay, this will be stored in the variable C. And when I say print C, okay, I would get to see the answer which is stored in C. I hope I've made myself clear. I'll be later at the end of the session, I'll be pasting this in a file, these examples, and sharing with you these files. So normally, you know, I'll tell you what kind of files I share with you. One is the notes, the formal notes, and if at times the formal notes are going to be getting delayed, I'll send with you the unedited notes. Two, I'll be sharing with you a file in which I'll be pasting these examples, all these examples which I've done during the day. And three, if there are some additional notes during the lecture which I want to share with you, additional notes I make, I'll be putting it in a notepad file and sharing that with you. So these are normally, on an average, the standard 2-3 files that I'll be sharing with you during at the end of the session. I normally send them to you through the email. We go further now. I repeat this topic, this symbol less than is called as relational operator. There are many such relational operators. Soon we are going to come to this topic. So, but as you would find this example in the notes at this particular stage, though we have not done the topic of relational operator, we have just in an informal way done this example piece. And I found this example to be simple, so I thought I'll not skip it. You'll get some more insight on this topic of Boolean values. Okay. Now notice one more thing. In terms of data types, please see my variable A is integer type. Okay. Now let me do this over here for you. Type of A, I'm asking the computer. It tells me integer type. Type of B, okay, it tells me integer type. And can you tell me in the chat box the type of C, please? Yes, the type of C. Guess the answer. Give me the answer in the chat box. Okay. Yes, come in others. Yes, Boolean, that's correct. Please see, the variable C, the type of variable C is Boolean. Yes, the computer compared A with B, but the answer is generated by comparing A and B is Boolean type. This is something to learn, though we are comparing integer values, but the comparison, the result of this comparison has been a Boolean type value. Okay, now we go further, go to our notes. And the next type is str. Now I remind you, in my last session, last Sunday, this variable, just as we have with this variable B equal to true, last Sunday when we had a session,
our variable was married. There was a variable married we had written, married equal to true, married equal to false. I'm just trying to relate it with my example. So we have, that's a confirmation that I did this topic with you. Last session, I had made Boolean variables. Yeah, this example, this I had done last Sunday, but this example is something additional that we have done today. STR, string data type. STR represents string data type. A string is a sequence of characters enclosed within single quotes or double quotes. Yes, you should enclose it in single quotes or double quotes. Like I made a string S1 and in single quotes I written Python, or I make the string S1 and in double quotes I write Python string. If I relate this with my example last Sunday, I had made a variable address and I had stored in it Dadar Mumbai 400028, if you remember. So that was string. So here we are making a variable S1 equal to, in single quotes, I am writing Dadar, simply Dadar, and S2 equal to Mumbai hyphen 400028, full stop. Okay. S1 is Dadar, S2 is Mumbai. Type of S1, STR. Type of S2, okay, STR. Only one change I am doing. Okay, one of them I wanted to put in double quotes, so I am putting Dadar again in double quotes. Or see this, S1 equal to, instead of Dadar I am writing Mumbai, Mahim. So this was just to show you that we can include strings in single quotes or in double quotes. No problem. This was a small introduction to string data type. Revision of string data types. Please refer to my notes. Now the next topic that we have in our notes is typecasting. Okay, typecasting topic is converting one type to another type. Okay, we are going to do this topic after some time. Yes, I am going to come to this topic after some time, typecasting. These are examples of typecasting, concepts of typecasting. Okay, now let me share with you one more data type in Python, that is none, N-O-N-E, none. For example, you are creating a variable age, and you don't know the person's age. Okay, you want to make the variable, you want to reserve one cell in the memory, computer's memory, and call it age, but you don't know what to store in it as of now. Now, one thing that would come in the mind is, might as well store 0. But let me tell you, when you're writing 0, you are confirming that the age is 0. I said we don't know it at all. We don't want to assume also. So in such a situation, we can write none. I repeat, when we don't know some value, or we don't know what to assign as of now, but we want to make a variable, but we don't know the value that we should give to it. So for the time being, we can give none. And let me tell you, it is not the same as age equal to 0. Huh? They're different. Giving 0 to age would be giving a numeric value and is different from giving none. Now when I print age, it prints none. And I ask the computer, what is the type of this variable age? It tells me none type. So this is one more data type
provided to us by Python called none type. We would use it rarely in some very rare occasion. I've just given you a brief introduction, so don't get stuck up with it. Okay, this is also one type. Okay, it should not be something like, when we come across it, we are suddenly surprised. So we've done it. None means nothing or no value at all. If the value is not available to us at this stage, then to handle such type of cases, none is introduced. It is something like null values in C, C++, and Java. Now, those of you who are familiar with C, C++, or Java, okay, in these languages we call this as null value. And those who are not familiar with these languages, you just focus on Python. That in Python it is called none. Now, friends, soon I'll be teaching you one very important topic for today, that is input function. Okay, but before that, I'm starting to do some programs with you. मैं आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स करने जा रहा हूं, और इसी प्रोग्राम को मैं आपके साथ तरह से अलग अलग तरह से करूंगा, और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको होमवर्क भी दूंगा इससे रिलेटेड, मतलब इस प्रोग्राम से मिलते जुलते प्रोग्राम्स का होमवर्क भी दूंगा मैं आपको। तो मैं कुछ सिंपल प्रोग्राम्स आपके साथ आज शुरू करने जा रहा हूं। प्रोग्राम्स हम करेंगे। उसके पहले मैं ये एग्जाम्पल्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूं आज के एग्जाम्पल्स। कंट्रोल सी कर रहा हूं और नोटपैड में मैं इन्हें पेस्ट कर लेता हूं। नोटपैड शुरू करके ये पेस्ट कर लिया। नाउ याद दिलाऊं मैं, ये एग्जाम्पल्स जो हमने we have done it in the interactive mode of Python. So I've copied and pasted them in this notepad file. I could see my examples, and we could also see the output. I'm saving this. I'm saving this by the name additional examples. And today's date. It's a txt file in which I've typed these. And if there are some additional notes, I'll call that file as additional notes and the date of that file. Additional notes, not the formal ones. कभी कभी सिखाते समय मुझे ऐसे लगता है कि मुझे किसी पॉइंट को और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना है या कुछ और एग्जांपल्स देने हैं, तो वो है ये एडिशनल एग्जांपल्स, और कुछ एक्सप्लेन करना है एडिशनल आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो हो गया एडिशनल नोट्स के नाम के फाइल में। Now friends, today at this moment now we are starting with our very first program in Python. Okay, just before I start, let me just speak to you regarding this free course that we have offered. Now friends, just give me a few minutes. Friends, the fact is, I find Python as a very, very beautiful language. I find Python as a very powerful language. It's very, very popular currently. For the past many years, I've been teaching starting language as C, then taking students further to C++, Java, and I would know students would find, at least 50% of students would find it difficult, these languages difficult. Many students out of this 50% would drop out, I would do C and, would not find, would not have the interest or would not have the willingness to do C++ or go further to Java. ये भी एक ट्रेंड होने लगा था कि लोग सीधा जावा सीखने के लिए जाते थे,
सी नहीं किया, सी प्लस प्लस नहीं किया, सीधा जावा करना शुरू कर देते थे। एंड लेट मी टेल यू, अक्सर ये स्टूडेंट ऊपर ऊपर से ही सीखते थे। कई बार तो ऐसे होता है कि बस वो टेक्स्ट बुक में से, नोट्स में से कोई लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का एक एक वर्ड क्यों लिखा हुआ है, वो लाइन क्यों लिखी जा रही है, उसे समझे बिना बस वो लाइन को कॉपी पेस्ट करते थे, बस टाइप कर देते थे बिना उस उसका रेलेवेंस समझे। और प्रोग्राम में अगर कुछ इस तरह की अलग अलग 5-10 लाइनें हैं, तो बस वो मदद करके उनको टाइप करते थे कि बस ये 10 लाइन से ये काम हो रहा है। उनको इंडिविजुअली वो लाइन का पर्पस पूछा जाए कि ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, तो उसका जवाब उन्हें नहीं होता था। तो ये सही तरीका नहीं हुआ जावा सीखने का। वो जावा सीखना एक लंबा रास्ता है। इस समय मैं जानता हूं आप में से यहाँ समीर है, पूजा है, इस मेरी बात को समझते होंगे। अब जब ये पाइथन लैंग्वेज मैं कुछ सालों से सिखा रहा हूं और मैं काफी इसको प्रमोट कर रहा हूं अपनी तरफ से, कुछ लोग अभी भी जैसे कुछ अपने जैसे निकेत के एज के कुछ लोग अगर होंगे 10th स्टैंडर्ड के, उनको प्रोग्रामिंग सीखना होगा और वो अपने किसी रिलेटिव से पूछते हैं कि क्या सीखे, तो वो उनके रिलेटिव उनको यही रेकमेंड करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह। मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल याद है। 1 साल पहले एक स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम कंप्लीट करके आया था और उसके रिलेटिव ने, किसी उनके मामा ने, चाचा ने उन्हें सी या सी प्लस प्लस सीखने को कहा था। और जब मेरे पास आए तो मैं उन्हें पाइथन कह रहा था आज से 1 साल पहले। और सच बताऊं तो पाइथन बताने के बाद मैंने उनको कहा पाइथन सीखे, काफी समझाया, पर बिलीव मी वो फिर आए नहीं कोर्स करने के लिए। अब मुझे पता है कि मेरे पास अगर वो सीखने के लिए आया है तो मैं चुपचाप बैठूं, फीस ले लूं और सी प्लस प्लस सिखाना शुरू कर दूं। वो सी सीखे, सी प्लस प्लस सीखे, जावा सीखे और फिर आए पाइथन सीखे। तो मैं सी की भी फीस लूं, सी प्लस प्लस की भी फीस लूं और पाइथन की भी फीस लूं। पर मैंने उसे कहा पाइथन सीखना शुरू करो, क्योंकि मैं उसका टाइम और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मैंने सिंसियरली एडवाइस किया, एटलीस्ट मैंने उसे कोई गलत एडवाइस नहीं दिया है। एटलीस्ट मेरा कॉन्शियस मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने पैसे लिए और किसी को सही एडवाइस नहीं दिया। और मैं अब इस प्रैक्टिकल लेवल पे आ गया हूँ। ये प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें मिला है, और इस समय जब सभी लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की आदत हो गई है, उसे सब जानते हैं कि अभी हमें उसको यूज टू होना है, तो सच बताऊं तो मेरा भी समय बचता है और मैं अपने घर के कंफर्ट से वीकेंड पे आपको ये सिखा सकता हूँ और मैं अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। अब इसी के लिए मैंने ये फ्री कोर्स ऑफर किया। अच्छा, अभी कमिंग टू द कोर्स, मैं इस कोर्स में आपको खाली पाइथन के फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ कि पाइथन में ये हो सकता है, वो हो सकता है, खाली मैं बोलते जाऊं और बस आपको मेरी बात एक्सेप्ट करनी पड़े कि ये हो सकता है। अब वो तो हमने पहले लेक्चर में कवर किया। अगर आप मेरा यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लो पहले लेक्चर में, तो पाइथन के फीचर में बता चुका हूँ क्या फीचर है। तो मेरा लेक्चर तो 1 दिन में खत्म हो गया था। तो मैं एक्चुअली आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। जो लोग पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनको तसल्ली देता हूँ कि आपके लिए इससे शुरुआत करना सही बात है। ओके, अगर मैं आप लोगों को शेयर करूं तो अगर आप इस समय शुरुआत करना चाहते हैं तो और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस लेवल की है वो है आर प्रोग्रामिंग। पर डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं आपको आर रेकमेंड कर रहा हूं। यू लर्न वन ऑफ द टू। डेटा साइंस किया जाता है आर प्रोग्राम, डेटा साइंस इन आर एंड डेटा साइंस विद पाइथन। तो मैं पाइथन के आपको तैयार कर रहा हूं। एक डेटा साइंस के कोर्स में लोगों को दोनों सिखा दिए जाते हैं, डेटा साइंस यूजिंग आर, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। आप लोग अगर आगे आर के बारे में कीन होंगे तो वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, आप चाहेंगे तो अलग से कोर्स होगा। बट मैं यदि बता रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा कि आप रेस्टोरेंट गए, आपको सादा डोसा भी खाना है, आपको मसाला डोसा भी खाना है। अब मेरे को नहीं समझ में आता है कि यार आपको सादा डोसा खाना है तो आपको मसाला डोसा भी क्यों खाना है। आपने सादा डोसा खाया तो कुछ और खाइए, मेदू वड़ा खाइए, इडली खाइए।
अब सारे डोसे के साथ साथ मसाला डोसा भी, वो हो तो गया डोसा ही वैरायटी, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कुछ और वैरायटी होनी चाहिए। तो ये मैंने अपना जस्टिफिकेशन दिया। ओके, मतलब मैं कहूंगा पाइथन करो थरली, और डेटा साइंस पाइथन में ही थरली करो, एकदम एक्सपर्ट बन जाओ पाइथन में ही डेटा साइंस। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर फिर क्यों लोग करते हैं, तो ऐसी बात है, कुछ लोगों को कुछ डेटा साइंस के फीचर्स आर में आसान अच्छे लगते हैं, और कुछ लोगों को पाइथन, कुछ फीचर्स पाइथन में अच्छे होते हैं डेटा साइंस के। आई रिपीट, some people find some data science features good in R, and some people find some other data science features that they use good in with Python. पूजा, अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है या क्लियर है? पूजा क्लियर है? जवाब दीजिए चैट बॉक्स में अभी, या ब्रेक हो रहा है? दूसरे दूसरे कुछ जवाब देंगे मुझे, क्लियर और ब्रेक? निकेत, समीर, प्लीज गिव द आंसर क्विक। क्लियर है सर, क्लियर है। Okay, we go further. Okay, friends, अभी तो मैंने आपको दूसरा, जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करना चाहते हैं उनके लिए पाइथन अच्छा है। दूसरा, जो कई साल पहले प्रोग्रामिंग कर रहे थे और अभी उनको रिकंसिडर करना है प्रोग्रामिंग, तो उनके लिए पाइथन शुरू करना, पाइथन करना लेटेस्ट लैंग्वेज है, पॉपुलर लैंग्वेज है, और आगे भी ले जाएगा आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, गेमिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, इन सब की तरफ ले जा सकते हैं आपको। तीसरा, जो लोग एक अच्छे लेवल पे है, सी, सी प्लस प्लस, जावा अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके लिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग सुटेबल है। चौथी बात मैं बताता हूं पाइथन में क्यों सिखा रहा हूं फ्रेंड्स। तो अच्छे खासे बड़े बड़े ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जब बड़े बड़े कोर्सेज कंडक्ट करते हैं पाइथन के, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो लोगों को एडमिशन के समय कहते तो है कि भाई आप बिगिनर होंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, आप कर सकते हैं। डेटा साइंस के कोर्सेज में मैं जानता हूं कहते हैं आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, प्रोग्रामिंग का, कोई बात नहीं। और लोग अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, मतलब जो लोग प्रोग्रामिंग फील्ड के नहीं भी हैं, दूसरे अलग अलग फील्ड से, टीचिंग में है या इंजीनियरिंग में है, या इंजीनियरिंग इज नॉट रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या कोई बैंकर है, कोई फाइनेंशियल फील्ड से है, तो ये कोई मेडिसिन फील्ड से है, कोई अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं डेटा साइंस का कोर्स करने, क्योंकि उन लोगों उनको डेटा साइंस काफी लुक्रेटिव एरिया लगती है आज के डेट पे जो है। ओके, और पर उनको बताया गया कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज की जरूरत नहीं है। होता कि यह है कि 3-4 लेक्चर्स पाइथन में आगे बढ़ने पर उनको इतना फास्ट लगने लगता है कंसेप्ट, आप उसके कंपैरिजन में मैं कहूंगा तो मैं काफी स्लोली आपके साथ कर रहा हूँ कंसेप्ट। स्लोली मीन जानबूझ के नहीं है कि मैं अपना समय बस निकालते जाऊं, तो इतना फास्ट किया जाता है, और फिर कहा जाता है कि भाई हमको एडवांस कंसेप्ट सिखाने के लिए हमें फास्ट जाना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट्स जो है जो पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उन्हें कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। और यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर फिर बोलता है कि भाई आपको आपको उसे अलग से रिसर्च करके आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। मतलब कोर्स ज्वाइन किया है और बोला गया था कि बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप बिगिनर होंगे तो भी ठीक है, और 2-3 लेक्चर्स में ही पता चल जाता है कि वो एडवांस कंसेप्ट करने के चक्कर में बेसिक कंसेप्ट इतना ऊपर फास्ट फास्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक वो जो बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, पर आर प्रोग्रामिंग में मैं बेसिक्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग, जो एक पर्सन डेटा साइंस कर रहा है उसको मैं आर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मैं सिखा रहा हूँ, और वो आगे पाइथन के भी बेसिक्स मेरे से सीखेगा, क्योंकि उसके जो डेटा साइंस के कोर्स में वो इतना फास्ट जा रहे हैं और इतना एडवांस लेवल का सिखा रहे हैं कि जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वो एडवांस समझ ही नहीं पाता है। तो उसने एक मॉड्यूल हो गया, अभी उसने ब्रेक लिया हुआ है, वो आर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मेरे से सीख रहा है,
और एडवांस कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन मेरे से लेगा और फिर आगे पाइथन के मॉड्यूल की तरफ जाएगा अपने उस डेटा साइंस के कोर्स में। और वहां जब वो पाइथन करेगा तो पाइथन के भी बेसिक्स मैं उसको सिखाऊंगा ताकि वो एडवांस कॉन्सेप्ट समझ पाए। चलिए, ये मैंने आपको जस्टिफिकेशन दिया हमारे कोर्स का। ओके, हम इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे टू द मींस यू नो इन फॉर्मल तौर पे कोर्स ये है। ये मान लो जैसे कोर्स का हमने बिगिनिंग पार्ट आपको ऑफर किया है सबको, और इस कोर्स को हम आगे भी लेके जाने वाले हैं। चलिए, वी गो अहेड विद आवर प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स। द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी आर मेकिंग, प्लीज सी, we click on file menu and select new file. In a Python, ideally, you click on file menu, select new file. आपको मैं बता दूं, हमें नोटपैड की ही तरह एक विंडो आएगा, बिल्कुल एम्प्टी विंडो, जिसमें हम अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। नाउ मैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले नोटिस कीजिएगा, ये हैश सिंबल दे रहा हूं, इन्हें कमेंट्स कहा जाता है। जब आप एक लाइन को हैश से शुरू करते हैं या आप हैश लिखकर आगे कुछ लिखते हैं तो उसे कमेंट कहा जाता है। कमेंट्स ये मानो मैसेजेस होते हैं आपके प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम में ही रहेंगे, आउटपुट में नहीं आएंगे। ना प्रोग्राम में ही रहेंगे, आउटपुट में नहीं आएंगे का मतलब क्या है, थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं कमेंट लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल with base 5 and height 10. Another comment I'm giving, hint area of triangle equal to half into base into height. ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस प्रोग्राम को मैं अलग अलग रूप में करने वाला हूं, अलग अलग तरीके से करने वाला हूं। मान लीजिए ये अलग अलग मेथड्स में सिखा रहा हूं आपको, यू नो, छोटा मेथड, बड़ा मेथड, सिंपल मेथड, डिफिकल्ट मेथड, व्हाटएवर, यू नो, ये सारे वेरिएशंस आपको सीखने हैं। सबसे पहले देखिए, मैं लिख रहा हूं, पहला सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, प्रिंट, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं हाफ, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यस, 1 divided by 2, this is division symbol. I repeat, this is division symbol. मैं इस प्रोग्राम को करते करते आपको कुछ मैं अरिथमेटिक सिंबल्स भी सिखा रहा हूं, इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है, हमारे नोट्स में है आज के। ओके, तो ये जैसे प्रोग्राम हो गया तो मैं वो पॉइंट आउट करूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहां पर है हमारे नोट्स में। तो ये डिविजन सिंबल है, हाफ, that is half means 1 divided by 2 into, this is the multiplication symbol। कीबोर्ड पे इस सिंबल को एस्टेरिस्क कहते हैं। मैं आपके लिए यहां पर नीचे कमेंट देते जाता हूं, ये सिंबल इज फॉर डिवीजन। ओके, इस सिंबल का नाम है, यू नो, है काम इसका डिवीजन, पर इसका नाम है फॉरवर्ड स्लैश। मीन्स कीबोर्ड के जो इसका नाम है, और एक्चुअल अरिथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अरिथमेटिक के हिसाब से इसे डिवीजन कहा जाता है। ये सिंबल है एस्टेरिस्क, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। हाफ इंटू बी, सॉरी, हाफ इंटू 5 इंटू 10, बेस 5 और हाइट 10।
जो मैंने लिखा प्रिंट हाफ इंटू 5 इंटू 10, 5 being the value of base जो क्वेश्चन में दी गई है, 10 being the value of 5 जो क्वेश्चन में दी गई है। लीजिए मैं अभी इसे और एक तरीके से लिख रहा हूं, हाफ को मैं लिख रहा हूं 0.5 मैथमेटिकली। ओके, मैथमेटिकली आप 1 डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो 0.5 होता है। मैं नहीं कहूंगा कैलकुलेटर पे करें, प्लीज आप खुद मैन्युअली करें। ओके, तो कहीं कहीं हमें खुद भी आना चाहिए ये सब करना। यस, मैं जानता हूं कि हम ऐसे वर्ल्ड में जहां पर हमारे पास गैजेट्स है जो आसानी से यूज करके काम कर सकते हैं, पर अपना ब्रेन पावर इंप्रूव करना भी एक अलग बात होती है। तो हाफ इज 0.5। ओके, अगर आप श्योर नहीं है तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है आप 1 डिवाइडेड बाय 2 जैसे डिवीजन करते थे हम स्कूल में, वैसे करके देख लीजिएगा। इंटू 5 इंटू 10, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, सॉरी 5, 0.5 इंटू 5 इंटू 10। जी हाँ, तो ये भी आपको आंसर दे देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। आपको दोनों नहीं लिख रहे हैं, पर मैंने 2 सजेशन दिए हैं इस फॉर्मूला को लिखने के। फ्रेंड्स, करते करते मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स आपके नॉलेज के लिए टाइप करते जा रहा हूं। ओके, ये जो हमने लिखा है 0.5 इंटू बी इंटू एच इंटू 5 इंटू एच जो हमने लिखा है इंटू 10, और हमने हाफ इंटू 5 इंटू 10 जो हमने लिखा है। ओके, इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेशन की कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जी हाँ, मैं आपको प्रोग्राम करते करते कुछ टर्म्स भी सिखाते जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ। ओके, इन्हें एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो यहाँ 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये 2 एक्सप्रेशंस है। और प्रिंट कमांड क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। ओके, मैथमेटिकली उसे सॉल्व करके मुझे इसका आंसर दिखाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं मिलकर। ओके, मैं थोड़ा आसान करता हूं आपके लिए। बताइए 5 इंटू 10 कितना होता है, आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। 5 इंटू 10, प्लीज आंसर हर एक का मुझे देखना है। आप ध्यान दे रहे हैं, आप हैं लेक्चर में। योर आंसर प्लीज। 5 इंटू 10, कम ऑन, कम इन अदर्स, क्विक। और फिर क्विक प्लीज। और फिर बताइए उसको हाफ किया, उसका हाफ किया, कितना हुआ उसका हाफ? जो आपने आंसर बताया उसका हाफ कितना हुआ? 25। जी हाँ, ये 25 प्रिंट कर दिया जाएगा। एक बात पे गौर करना फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला कितना भी बड़ा हो, एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो, आप जब उसे सॉल्व कर देंगे तो हाथ में एक वैल्यू आएगी। मैंने कहा एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो, सॉल्व करने पर इट कम्स डाउन टू 1 सिंगल वैल्यू। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन से 25 इज 1 वैल्यू। वैसे देखा जाए इसमें कई वैल्यूज नजर आ रही है, 1, 2, 5, 10 और बहुत कुछ कहा गया है। चलो डिवाइड करो, चलो मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। पर जब इन सबको कर दिया जाएगा तो आखिर में एक वैल्यू आएगी जो प्रिंट की जाएगी। ना समझिए, ये मैंने अज्यूम कीजिए मैंने ये प्रोग्राम टाइप कर लिया, और अब हम इसे सेव करते। देखिए प्लीज, फाइल मेनू में जाकर सेव। तो फ्रेंड्स, सेव के बारे में आपको मैं सिखा रहा हूं कुछ। सेव कहां करेंगे, कैसे करेंगे। इस फाइल को 1 मिनट में कैंसिल कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं जो मैंने टाइप की हुई है, नोटिस किया आपने, मैंने जब प्रिंट कमांड टाइप किया और एंटर किया
क्या आपको अगली लाइन पे रिजल्ट नजर आया क्या? 25 नहीं आया नजर? जी हाँ, हम इंटरैक्टिव मोड में नहीं है। इंटरैक्टिव मोड में होते हैं तब एंटर करते ही आपको अगली लाइन पे रिजल्ट आता है। नोटिस कीजिए, आपको ये प्रॉम्प्ट भी नहीं नजर आ रहा है यहां पर। इस समय हम स्क्रिप्ट मोड में है, इसे स्क्रिप्ट मोड कहते हैं, इसे प्रोग्राम मोड भी कहते हैं, जिस मोड में हम काम कर रहे हैं अभी इस समय। ओके, व्हाट इज दिस मोड कॉल्ड एज? इज कॉल्ड स्क्रिप्ट और प्रोग्राम मोड इन पाइथन। आज ये पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, पहली बार हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं। लो, अब सेव करते हैं। इस स्क्रिप्ट को एक फाइल में सेव करना होगा। फ्रेंड्स, अब तक हमने ये जो टाइप किया, ये प्रोग्राम की सारी लाइनें हमारे कंप्यूटर्स की मेमोरी में है, रैम में है। रैम, ये लाइनें अगर किसी कारण लाइट चली जाएगी, ये पूरा प्रोग्राम चला जाएगा, क्योंकि अब तक हमने सेव नहीं किया है। तो हम प्रोग्राम को सेव करें। सेव ना, अक्सर सेव कर, मैं रेकमेंड करता हूं लोगों को, सेव आप अपने सी ड्राइव को छोड़कर दूसरे वाले ड्राइव में करें, डी ड्राइव या ई ड्राइव। आई हैव रीजंस फॉर दैट, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल रीजन फॉर दैट। तो डी ड्राइव में मैंने हमारे बैच के लिए फोल्डर बनाया हुआ है, वो है ये पाई जून 20। ओके, मैं आपको शेयर करूं, अप्रैल में ही, मार्च एंड में ही मैंने एक बैच चालू किया था पाइथन का, विच इज गोइंग ऑन द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ पाइथन। ऑलमोस्ट 2 months आर डन। ये हमारा फोल्डर, उसके अंदर गए। ओके, आप भी अपने घर पे कंप्यूटर पे इस तरह डी ड्राइव या ई ड्राइव में एक फोल्डर बनाए अपने नाम का, या ऐसे ये नाम का, पाइथन नाम का, और उसमें अपना प्रोग्राम सेव करें। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं प्रोग्राम 1 के नाम पे से। इसको एक्सटेंशन मिलेगा .py, खुद ब खुद उसे एक्सटेंशन मिलेगा। मुझे उसे फाइल नेम देना है। तो ये लाइनें एक फाइल में सेव होगी जिसका नाम है प्रोग्राम 1, फोल्डर पाई जून 20 डी ड्राइव में सेव। ये लाइनें सेव होंगी। मैं यहां ऊपर प्रोग्राम में एक और कमेंट लिख देता हूं, प्रोग्राम 1.py, फाइल नेम भी और इधर कमेंट भी टाइप किया हुआ है। फ्रेंड्स, एक और बार गौर कीजिएगा, मैंने प्रोग्राम में कई सारे कमेंट्स टाइप किए हुए हैं। तीन लाइनें कमेंट्स की, फिर 4, 5, 6, 7 लाइनें कमेंट्स की टाइप की हुई है, और 2 प्रिंट की लाइनें टाइप की हुई है। अब हम आउटपुट देखेंगे इस प्रोग्राम का, सीखे कैसे। हाउ विल यू सी द आउटपुट ऑफ योर पाइथन प्रोग्राम? In this run menu, you select run module. The name of the menu is run, and select the very first command, run module. अब notice कीजिए, we have come back to interactive mode, and in the interactive mode, which is also called a shell, Python shell भी कहते हैं इसे, Python ideally भी कहते हैं इसे। इधर आपको आउटपुट नजर आ रहा है 25.0, 25.0 दो बार नजर आ रहा है। ओके, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि मैंने दो तरह से कैलकुलेट किया, इसीलिए 2 बार आंसर आ रहा है। एक्चुअल सोल्यूशन में तो एक ही काफी है, पर मुझे आपको दोनों फॉर्मूलाज दिखाने थे, एक्सप्रेशन दिखाने थे, तो मैंने दोनों को ही यहां डाल दिया है। आप समझ सकते हैं कि मैं इस एक एक लाइन के लिए 2 प्रोग्राम बनाता, इंस्टेड मैंने दोनों तरीके एक ही में दिखा दिया आपको। अब गौर कीजिएगा, क्या आपको आउटपुट में यहां आउटपुट में, ये देखिए यहां लिखा हुआ है कि ये जो आउटपुट हम देख रहे हैं यहाँ, ये कौन से प्रोग्राम पे, उस प्रोग्राम का नाम नजर आ रहा है यहाँ पर। अब आपको एक भी कमेंट नजर आ रहा है यहाँ पर? नहीं नजर आ रहा है। तो कमेंट्स प्रोग्रामर डालता है, टाइप करता है प्रोग्राम के अंदर, वो सिर्फ उसके अपने रेफरेंस के लिए होते हैं, प्रोग्रामर के अपने रेफरेंस के लिए होते हैं।
वो आउटपुट में नहीं नजर आते हैं। जी हाँ, पाइथन उन्हें नहीं चलाता है, वो आपके उस प्रोग्राम 1.py फाइल में रहेंगे पर आउटपुट में नहीं नजर आएंगे। और तो फिर आउटपुट में सिर्फ क्या नजर आ रहा है, बताइए कौन से कमांड्स का रिजल्ट हमें आउटपुट में नजर आ रहा है? ओनली which commands are delivering me output? Tell me which command of my program is showing me output, giving me result. Come on, give me the answer. Okay, you are confirming that to yourself. You see, एक तरह से कौन सा कमांड प्रोग्राम में हमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाएगा, आउटपुट देगा प्लीज? या फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? कमांड कहो, फंक्शन कहो, एक्चुअली तो वो फंक्शन है पाइथन का। निकेत, योर आंसर। ये जरूरी सवाल है, आई नीड द आंसर। कोई सिंपल सवाल होगा, मैं जाऊंगा आगे बिना मीन्स किसी का आंसर लेट आएगा तो, पर ये जरूरी सवाल है, मेरा आंसर चाहिए मुझे इसका। निकेत सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। कौन से, विच कमांड, द आउटपुट दैट यू सी is coming in from which command of my program, which function of my program, which line of my program? Have you heard me, Niket? It is a print command, not the script command. Script is my program, my entire program. Okay, now we go back to our program. Just see how do we go back to our program. See the output. We're going to our program. Now let me tell you, please see at the bottom on my taskbar where you see the Python icon. You have two programs over there. Okay, this one is a shell where you see output, and I click on the other one below that is my program. So there are two windows now, one my program window and one the output window. Now friends, this entire program with all its line is the script, is the program, but the output came in, only the output came in from this print command. मैं पूछ रहा था कि क्या आपको कमेंट्स आ रहे हैं, क्या आउटपुट में नहीं आ रहे हैं? क्या एक भी कमेंट आउटपुट में आया? क्या नहीं? अच्छा, कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कुछ भी लिखो, पर मुझे जो प्रोग्राम दिखा रहा है वो सिर्फ इन दो प्रिंट कमांड्स ने जो कहा है, जो लिखा है, वो हमें आउटपुट नजर आ रहा है। निकेत, आपको बात समझ में आ गई है? यस सर। नाउ फ्रेंड्स, अब इस प्रोग्राम को मैं एक और तरीके से करने जा रहा हूं, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, जस्ट वन स्मॉल चेंज आई एम डूइंग। ये जो प्रोग्राम हमने सेव किया, प्रोग्राम 1, ओके, अब मैं इसे और एक तरीके से कर रहा हूं, तो मैं यहाँ कमेंट में मैं इसे प्रोग्राम 1A नाम दे रहा हूं। ओके, 1A। एंड अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल सेव एज कर रहा हूँ, आई एम सेविंग एज, आई एम नॉट डूइंग सेव, आई एम सेविंग एज। ओके, क्लिक ऑन सेव एज, and inside my D drive, inside my folder, I am giving a name to the file program 1B. मतलब मैं अपने प्रोग्राम 1 की कॉपी बना रहा हूं, आई रिपीट, मैं उसकी कॉपी बना रहा हूं 1B के नाम से। मैं अपने प्रोग्राम की कॉपी बना रहा हूं 1B के नाम से, और देखिए मैंने इधर टाइप किया 1B। अभी आपकी फाइल का नाम प्रोग्राम 1B और प्रोग्राम का नाम अंदर मैंने प्रोग्राम टाइप किया हुआ है कमेंट में, प्रोग्राम 1B। ये हुआ प्रोग्राम की कॉपी बनाना। कैसे? सेव एज करके आप नया नाम दो, तो आपका जो प्रोग्राम है ओपन, वो एक नया नाम से सेव हो जाएगा। और नोटिस करो, इस समय 1 नहीं ओपन है, 1B ओपन है, 1 नहीं ओपन है, 1B ओपन है। मीन्स अभी आप 1 के साथ नहीं काम कर रहे हैं, 1B के साथ काम कर रहे हैं अभी ना। ये क्यों किया हमने? सेव एज। फ्रेंड्स, हमें पूरा प्रोग्राम नहीं टाइप करना है, ये सब कुछ बैठ के नहीं टाइप करना है, इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम की कॉपी बना ली, सेव एज से। ना क्वेश्चन यही है
अलाउ मी, अब की बार मैं नीचे से कमेंट्स निकाल रहा हूं। ये पहले वाले प्रोग्राम में है, मैंने दूसरे वाले से निकाल दिए 1B से, अब उनकी जरूरत नहीं है हमें, आप उन्हें वन में पढ़ लेना। ये प्रिंट भी निकाल रहा हूं मैं, और मैं अब ये प्रोग्राम आपके साथ और एक तरीके से करने जा रहा हूं। यही क्वेश्चन है, जब मैं एक ही प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से करता हूं, आई डोंट नेम देम एज 1 2 3, I name them as 1A, 1B, 1C and so on. Have you got my pattern of giving names to programs, file names? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, b equal to 5, मैंने एक वेरिएबल बनाया b for keeping the base और उसे वैल्यू 5 दिया। अब मैं लिख रहा हूं h equal to 10, एक और वेरिएबल बनाया h और उसे 10 दे रहा हूं मैं। अब मैं प्रिंट लिख रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं 0.5 into b into h, 0.5 into b, that is variable for base, जिसको वैल्यू 5 दी गई है। ओके, तो कंप्यूटर 0.5 into 5 करेगा एंड देन फर्दर into h करेगा, दैट इज 10, और कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दिखाएगा। ना फ्रेंड्स, प्रीवियस प्रोग्राम में इस जगह पर मैंने 5 लिखा था और इस जगह पे 10 लिखा था। इस प्रोग्राम में मैंने यहां पर b का वेरिएबल का नाम लिखा है और h वेरिएबल का नाम लिखा है, और ये स्टेटमेंट के पहले, इस स्टेटमेंट के पहले जरूरी है, इसके पहले कि आप b वेरिएबल को कुछ वैल्यू दे और h को कुछ वैल्यू दे। मुझे बताइए कि क्या ये सही रहेगा, इस ऑर्डर में लाइनें सही होंगी क्या? Come on, give me the answer, yes or no. फ्रेंड्स, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना होता है, एक सेंसिबल ऑर्डर में लिखना होता है। मैंने कहा सेंसिबल ऑर्डर, इसे लॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, एक समझदारी से लिखना होता है। हम कैसे भी मन से अपने प्रोग्राम की लाइनें नहीं लिख सकते किसी भी ऑर्डर में। ओके निकित, आपका जवाब, क्या ये सही ऑर्डर है? नो। क्यों नो? क्योंकि जब कंप्यूटर ये कैलकुलेट करेगा 0.5 इंटू बी इंटू एच, तो वो जानना चाहता है कि बी की क्या वैल्यू है और एच की क्या वैल्यू है, और वो जानना चाहता है मीन्स इसके पहले, इस लाइन के प्रिंट के पहले कोई लाइन होनी चाहिए जहां पर आपको बी को कोई वैल्यू देनी है और एच को कोई वैल्यू देनी है। इसीलिए ये लाइनें नीचे नहीं, ये प्रिंट के पहले होनी चाहिए। अच्छा, अब और एक बात बताइए मुझे, ये h इक्वल टू 10 कैन इट बी बिफोर b इक्वल टू 5? अब इस सवाल का जवाब, कैन इट बी लाइक दिस, h इक्वल टू 10 b इक्वल टू 5 एंड देन द फॉर्मूला? यस और नो? आंसर, यू कैन इवन टाइप y और n। यस, जी हाँ, हमें b को कुछ वैल्यू देनी है, h को कुछ वैल्यू देनी है। बिफोर दिस कैलकुलेशन आप h को पहले दे दे फिर b को, या b को पहले दे दे फिर h को। होना ये होना चाहिए कि ये दोनों लाइनें, कोई भी पहले कोई भी बाद में, शुड बी बिफोर दिस। ना फ्रेंड्स, अब एक और बात, आप कहेंगे सर हमने पिछले प्रोग्राम में इधर 5 लिख दिया था और 10 लिख दिया था, यू नो,
मतलब चलिए वो मैं लिख लेता हूँ लाइन इसी प्रोग्राम में नीचे एज अ रेफरेंस। हमने ऐसे लिखा था 0.5 इंटू 5 इंटू 10 ऐसे लिखा था, और एक प्रोग्राम एक ही लाइन में हो गया। आप इधर 3 लाइनें लिख रहे हैं। ओके, सोच समझ के मुझे जवाब दीजिए, सोच समझ के। ये नहीं कि हम कन्वीनियंस देख रहे हैं, अपना अपनी एनर्जी सेव करनी है, 3 लाइनें टाइप नहीं है, 1 लाइन में टाइप करनी है। ओके, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। ओके, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। व्हाट इज गुड प्रोग्रामिंग, दैट द अर्लियर वन जिसमें ये था, या दिस वन? व्हाट इज गुड प्रोग्रामिंग? एंड फ्रेंड्स, आपको शायद इस समय ठीक है, आपको मेरे आंसर से सहमति नहीं होगी, बट आगे जैसे आप प्रोग्रामिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम साबित करेंगे, आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे कि क्यों, कौन सा बेहतर है। कम ऑन टेल मी, समीर एंड निकेत। यस, दिस वन इज बेटर, वेर यू आर यूजिंग दीज वेरिएबल्स। दिस वन इज बेटर देन द अर्लियर वन। Okay, this earlier one, if you see in this print, I've simply, I've just simply put a formula and expression, whereas here I've used variables. Okay, if you remember last session we have learned variables, so we are making use of variables, and it goes a long way. Okay, तो rest assured, ये आप मेरे पे विश्वास कीजिए कि ये बेहतर तरीका है प्रोग्रामिंग का, और इसके एडवांटेजेस है कुछ। हाँ, आपको ज्यादा परवाह नहीं हो प्रोग्रामिंग की, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग की परवाह नहीं हो, तो आप ऐसे प्रोग्राम लिखें शॉर्टकट। पर जरूरी है कि शॉर्टकट हमेशा ही अच्छा हो, प्लीज। ओके, तो प्रोग्रामिंग स्किल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बेहतर है। एंड फ्रेंड्स, लेट मी अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमें यही करना था, यूं ही, हाँ ऐसे ही बात कर रहा हूं मैं वैसे तो मैंने ये पहले प्रोग्राम में लिखा था क्योंकि मुझे आज आपको प्रोग्राम्स बनाना सिखाना था, बट नोटिस कीजिए नीचे मैं पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में आ रहा हूँ, शेल पे आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको एक ही लाइन लिखनी थी तो आप यही लिख देते, प्रिंट 0.5 इंटू 5 इंटू 10, या चलो अभी मैं लिखता हूँ 0.5 इंटू 10 इंटू 20। बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू चेंज कर दी मैंने, इंटरैक्टिव मोड में प्रॉम्प्ट पे मैंने लिखा, एंटर किया, आ गया रिजल्ट। तो मैं प्रोग्राम में क्यों बनाता? फ्रेंड्स, प्रोग्राम बनाने के फायदे होते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, प्रोग्राम नंबर 1A, बस एक शुरुआत थी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की। तो अगला स्टेप है हमारा ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं 1B। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा और इम्प्रोवाइज और इम्प्रोवाइज करेंगे थोड़ी देर में। मैंने सेव किया इसे। ओके, सेव, अब अभी मैंने सेव किया तो मैंने जो चेंजेस किए वो सेव हो गए 1B में। और आपको याद है शुरुआत में हमने 1B कैसे किया था? हमने 1A को 1B में कॉपी कर दिया था पूरा। हाँ, जब आप एक बिल्कुल ही नया प्रोग्राम करेंगे, हम जब प्रोग्राम नंबर 2 पे जाएंगे ना, तो हम ये करेंगे, फाइल, न्यू फाइल। क्या करेंगे? न्यू फाइल। पर जब हम एक ही प्रोग्राम में चेंजेस करते जा रहे हैं, तब हम सेव एज किया करेंगे। ओके, मुझे बताइए, आपको सेव एज समझ में आ गया? प्रोग्राम की कॉपी बनाना और फिर उसमें चेंजेस करना टू सेव टाइम ऑफ टाइपिंग। हैव यू अंडरस्टूड इट? चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए, रन किया, आंसर आया 25। नेक्स्ट, मैं इधर स्टार्ट बार पे क्लिक कर रहा हूं और अपने प्रोग्राम पे बात जा रहा हूं। और अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से, अगर आप सेव एज नहीं समझिए, देखो 1B है, फाइल सेव एज कर रहा हूं 1C के नाम से। मतलब मैं 1B को कॉपी कर रहा हूं 1C के नाम से। अब इधर देखो, ऊपर टाइटल बार में 1C दिखाई दे रहा है।
और अभी मैं जो चेंजेस कर रहा हूं वो 1C फाइल में, 1B में नहीं, 1C में। अब मैं कुछ और चेंजेस कर रहा हूं मेरे प्रोग्राम में। b इक्वल टू 5, h इक्वल टू 10 के बाद मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू, एक और वेरिएबल बना रहा हूं प्रोग्राम में, a इक्वल टू, और लिख रहा हूं, चलो फॉर अ चेंज ऐसे लिख रहा हूं, हाफ इंटू बी, या चलो फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को और एक तरीके से लिखता हूं, b इंटू एच डिवाइडेड बाय 2, b 5, h 10, 5 इंटू 10 50, और 50 का आधा किया तो हो गया 25। तो ये भी इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका हो गया। और हमने एक और वेरिएबल बनाया a, और अब प्रिंट में मैं यहां पर a लिख रहा हूं। हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया a, जिसमें हमने एरिया बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2 करके आंसर a में रखा और अब उसे प्रिंट किया। हमने बेस, इस प्रोग्राम में बेस के लिए एक वेरिएबल बनाया है, दूसरी वैल्यू हाइट के लिए एक और वेरिएबल बनाया, और एरिया रखने के लिए एक और तीसरा वेरिएबल बनाया। तो ये और इम्प्रोवाइज हुआ प्रोग्रामिंग, हमारी प्रोग्रामिंग और पॉलिश हो रही है। इसे रन करते अभी हम, आउटपुट वही आएगा 25। नो फ्रेंड्स, आप जब ये इन्हें प्रैक्टिस करें, इन्हीं प्रोग्राम्स को जब प्रैक्टिस करें, मैं जब आपको नहीं दूंगा तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इधर आप वैल्यूज चेंज करें, ओके, अपनी तरफ से कुछ और वैल्यूज दें, फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिखें, ओके, नाम, ओके, नाम अलग अलग दें। चलिए एक काम करता हूं फ्रेंड्स, इस 1C में अलाउ मी, अभी अभी मैंने दिखा दिया आपको चेंज करके, तो मैं अलाउ मी, मैं यहां थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूं आपको, 5.5 लिखता हूं और 10.5 लिखता हूं। ओके, बताइए पहले मैं कौन सी वैल्यूज के साथ काम कर रहा था, कौन सी टाइप की वैल्यूज के साथ, और अब कौन सी टाइप की वैल्यूज के साथ काम करने जा रहा हूं मैं। पहले टाइप का नाम और अभी टाइप का नाम एक ही लाइन में लिखिए, पहले टाइप का नाम कॉमा अभी टाइप का नाम, एक लाइन में। पहले क्या टाइप का नाम था, डेटा टाइप और या वेरिएबल्स का टाइप, और अभी क्या टाइप है। कम ऑन, गिव मी द आंसर। फ्रेंड्स आंसर आप मुझे ही भेजिएगा, प्लीज चेक कीजिए आपके आंसर्स वहां पर, उधर आपके चैट बॉक्स में हो, ऐसा लिखा होना चाहिए, प्राइवेटली टू द होस्ट, दूसरों को नहीं जाएंगे। ये मैंने चेक किया सेटिंग में, आपके मेरे आंसर्स मेरे पास ही आएंगे, दूसरों तक नहीं जाएंगे, चेक किया मैंने। आप भी अपनी तरफ से कंफर्म कर लीजिए खाली। कम ऑन निकेत, आपका आंसर नहीं आया। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, मैं पूछ रहा था, ये पहले हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, और अभी इस प्रोग्राम में कौन सा डेटा टाइप, पहले 510 कौन सा डेटा टाइप था, अभी कौन सा डेटा टाइप है, एक लाइन में नाम बताइए उनके, दिस कॉमा दिस, पहले का टाइप और कॉमा अभी का टाइप। लास्ट सेशन हमने ये टॉपिक सीखा हुआ है सेकंड लेक्चर में। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं, पहले का टाइप था इंटीजर 510, और अभी जो हम प्रोग्राम में टाइप्स दे रहे, वैल्यू जिस टाइप की लिख रहे हैं 5.5, 10.5 और डेसिमल, फ्लोट। तो इधर हम b इक्वल टू 5.5 लिखते हैं, h इक्वल टू 10.5 लिखते हैं, और हमने कैलकुलेट किया बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 एरिया, और प्रिंट कर रहे हैं एरिया। और एक चेंज कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, मैं यहाँ b को नाम दे रहा हूं बेस, h को नाम दे रहा हूं हाइट। ये और एक चेंज कर रहा हूं मैं इस प्रोग्राम में, वेरिएबल को नाम दिए बेस और हाइट। मैं इसे सेव कर रहा हूं प्रोग्राम 1C विद दिस चेंज।
कंपाइल मैं रन कर रहा हूं मेरे इस प्रोग्राम को, पर नोटिस कीजिए मुझे एरर आ रहा है रन करते समय। ये देखो, नोटिस कीजिए ये एरर आ रहा है। ओके, वो बता रहा है किस प्रोग्राम में एरर है। प्रोग्राम 1C के लाइन नंबर 7 में एरर है। वो लाइन ये है और वो एरर है, एरर का नाम है नेम एरर, और वो कह रहा है एक्सप्लेनेशन दे रहा है उस एरर का, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। ये इस एरर, हर एक एरर का नाम होता है। जैसे इस एरर का नाम है नेम एरर और उसका डिस्क्रिप्शन है ये बाजू में। जिस लाइन में वो एरर है वो लाइन ये है, लाइन का नंबर 7 है प्रोग्राम में। ये मैसेज डिस्क्रिप्शन देखो एरर का, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं, मुझे जवाब दीजिए क्यों एरर आ रहा है और उसको एरर या कैसे मैं उसको करेक्ट करूं इस एरर को। ओके, मैं रैंडमली आपको पूछता हूं, समीर बताइए एरर क्या है और या उसको कैसे करेक्ट करूं मैं। रैंडमली मैं पूछूंगा एक एक को, क्योंकि सबका इंतजार करता हूँ, थोड़ा समय लगता है। पर आप अपना एरर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, आप मुझे ही दिखाई देगा वो। ओके जी हाँ, इधर आप नोटिस कीजिए, प्रोग्राम में हमने वेरिएबल बनाया बेस, पर हम जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने वेरिएबल को बी लिखा है ना। मेरा पाइथन प्रोग्राम बेस नाम के वेरिएबल को जानता है, ये प्रोग्राम बेस नाम के वेरिएबल को जानता है पर बी को नहीं जानता है, इसीलिए वो कह रहा है नेम बी नॉट डिफाइंड। वो जानता है बेस को, तो मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा, लिखना होगा बेस एंड देन हाइट। हाँ, वेरिएबल ए, एरिया के लिए वेरिएबल ए रखेंगे चलेगा, या चलिए यहाँ चलेगा मैंने कहा, और फिर प्रिंट ए। पर अगर मैं यहाँ एरिया करता हूं, ओके नो, मैंने एरिया चेंज किया, सेव कर रहा हूं प्रोग्राम, कंपाइल कर रहा हूं, एक को मैं पूछने वाला हूं सवाल, मुझे अभी भी एरर आ रहा है। निकेत आप मुझे जवाब देंगे ये एरर क्यों आ रहा है और कैसे इसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं डायरेक्टली वो बता दीजिए मुझे। नेम ए इज नॉट डिफाइंड, एरर देखिए इधर लाइन, लास्ट लाइन में। बताइए कैसे करेक्ट करूं मैं उसे। निकेत मुझे जवाब चाहिए आपका। सर बोल के बता दो या चैट बॉक्स में। हाँ, चैट बॉक्स में बता दिया करो तो समय बचेगा हमारा उधर। थोड़ी आदत डाल देनी पड़ेगी आपको, चैट बॉक्स सामने खुला रखिए आप अपने एक छोटे से विंडो में। अपना अपना आप एरर मैसेज भेज सकते हैं, मैं जब पूछूं तब भी। यस, इन प्रिंट कमांड वी हैव रिटन ए, तो हमें उसे करेक्ट करना है। बताइए करेक्ट क्या करूं, आप वो कमांड लिख के दीजिए मुझे चैट बॉक्स में लिख के। आपने एरर पॉइंट आउट किया है, बट आप जब भी मुझे उसका करेक्शन बता देते हो तो दोनों जवाब आ जाते हैं मुझे, एरर क्या है और उसका सोल्यूशन भी आ जाता है मेरे पास, मैं समझ जाता हूं। जी हाँ, प्रिंट एरिया ब्रैकेट में, निकेत ब्रैकेट में, इनकी आदत डालनी होगी सब हमें। हाँ, ब्रैकेट सर मैंने ब्रैकेट आया आया अभी आया, मैंने पहले वाला देखा आपका। ये देखिए अब रन कर रहे हैं हम इसे, आगे आंसर 28.875। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, नोटिस कीजिए मैं अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज कर रहा हूं। हाँ, और चेंज करके मैं डायरेक्टली रन करने जाऊंगा ना, डायरेक्टली रन करने जाऊंगा तो मुझे वो एक बॉक्स देगा पाइथन कि आपने अपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है, तो क्या सेव करे क्या वो। तो मैं कहता हूं ओके, हाँ सेव करके तू रन कर। हैव यू गॉट मी, स्मॉल दिस स्मॉल थिंग। और अगर आप बरोबर सेव करके रन करें तो वो बॉक्स नहीं आएगा, कंफर्मेशन बॉक्स। छोटी सी बात है वो। तो इस प्रोग्राम में हमें कौन सा डेटा टाइप यूज किया, फ्लोट डेटा टाइप यूज किया। पहले हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया, अभी हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया।
चलिए अब हम इस प्रोग्राम को और एक तरीके से सेव कर रहे हैं और थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। सेव एज कर रहा हूं, कॉपी बना रहा हूं इस प्रोग्राम की मैं 1D के नाम से। और अब 1D में और चेंज करेंगे हम, वैल्यू को थोड़ा चेंज कर रहे थे ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। 25.25 एंड हाइट 50.75 ऐसे ही मैंने दे दिए। बेस इक्वल टू 25.25, हाइट इक्वल टू 50.75, एरिया कैलकुलेट किया। ओके, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ना, मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूलाज दिखाए। ओके, अब मैं जो मेरा प्रिफर्ड फॉर्मूला है, मेरा प्रिफर्ड फॉर्मेट है वो ये है 0.5 इंटू बी इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 3 तरीके आपको बता चुका हूं, 3 फॉर्मूलाज मुझे ध्यान में है इस दौरान दे चुका हूं एरिया कैलकुलेट करने के। तीनों करेक्ट है, मेरा ये प्रिफर्ड है, अपना अपना प्रेफरेंस होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब देखिए मैं प्रिंट कैसे कर रहा हूं। हाँ फ्रेंड्स, प्रिंट पे ध्यान दीजिएगा। वैल्यू को चेंज किया, फॉर्मूला को चेंज किया, वो छोटी बातें हैं, पर आउटपुट पे अभी ध्यान दीजिएगा, प्रिंट कमांड पे ध्यान दीजिएगा। ओके, एक और बात पे मैं वापस से ध्यान लाता हूं। बताइए क्या ये हमें कमेंट्स दिखाई दिए थे क्या आउटपुट में? नहीं आए थे कमेंट्स, और आउटपुट में सिर्फ एक ही लाइन आ रही है, वो क्योंकि एक ही प्रिंट कमांड है, इसलिए एक ही लाइन आ रहा है आउटपुट का। एंड नोटिस कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट देने का एक और तरीका, कमेंट्स देने का यहां पर ये जो लाइन है एरिया इक्वल टू, इसी के आगे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कमेंट मैंने लिखा है। क्या किया मैंने, मेरे प्रोग्राम की इस लाइन, ये लाइन में क्या काम हो रहा है? इधर ऊपर हमने कमेंट लिखा है कि मेरा प्रोग्राम क्या करता है, और मैंने यहां पर इस लाइन पे आगे मैंने कमेंट लिया कि ये लाइन क्या करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे आपको प्रोग्राम में ही लाइन बाय लाइन समझाना हो क्या हो कर रही है वो लाइन, कोई पर्टिकुलर लाइन हमारे प्रोग्राम की क्या करती है, तो मैं उसे भी आगे इस तरह से कमेंट दे देता हूं। कमेंट दे सकते हैं हम जी हाँ, कमेंट ऐसे भी दिया जा सकता है, मतलब पूरी लाइन कमेंट बनाओ इस तरह से बिगिनिंग में हैश देकर, या आप किसी स्टेटमेंट के पीछे कमेंट दे दो इस तरह से हैश देकर। इस सिंबल को हैश कहते हैं। जी हाँ, ये जो सिंबल है कमेंट्स के लिए, एंड इट इज यूज्ड फॉर गिविंग कमेंट्स। ये मैं पहले दे देता, पहले लिख लेता, कोई बात नहीं, अभी याद आ गई तो बात शेयर कर दी आपसे। अभी बहुत जरूरी बात पे आ रहे हैं। कमेंट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट कैजुअली। दो न दो कोई बात नहीं है, जैसे दो, थोड़ा थोड़ा देना आपके लिए अच्छा है, थोड़े थोड़े कमेंट्स प्रोग्राम में रखना आपके खुद के लिए अच्छा है, बताता हूं। प्रिंट पे आइए। आपको याद है जब भी हमने ये एरिया का प्रोग्राम किया है तो अब प्रिंट आउटपुट क्या आता रहा है? अब तक देखिए आउटपुट में एक ही लाइन आती रही है और वो सिर्फ एरिया की वैल्यू आती रही है। आउटपुट में हमें सिर्फ एरिया की वैल्यू नजर आ रही है। तो आप और हम जानते हैं कि ये जो देख रहे हैं हम 28.875 ये क्या है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पर कोई थर्ड पर्सन हमारे से अलग कोई आकर देखेगा, क्या वो समझ पाएगा ये वैल्यू किस चीज की वैल्यू है? ये वैल्यू एरिया ऑफ स्क्वायर है, या एरिया ऑफ सर्किल है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल है, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है? क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो हम अपने आउटपुट को पूरा कर रहे हैं अभी,
पूरा, थोड़ा इनकम्प्लीट है हमारा आउटपुट, पूरा कर रहे हैं। देखिए कैसे, प्रिंट कमांड प्रिंट फंक्शन है, इसीलिए प्रिंट फंक्शन के बाद ब्रैकेट शुरू होते हैं और ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ये मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, मेरी मर्जी पे है, इसे मैं पूरा स्मॉल में भी लिख सकता हूं, इसका एक एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी के लेटर स्मॉल में भी लिख सकता हूं, अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। इक्वल टू के बाद मैं डबल कोट्स क्लोज कर रहा हूं। नाउ ध्यान से देखिए, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, डबल कोट्स के अंदर जो मैंने लिखा है, डबल कोट्स के साथ, इसे स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। और आप जो डबल कोट्स में देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू एज इट इज प्रिंट की जाएगी। आई रिपीट, ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, और वो आउटपुट में वैसे ही आएगा जैसे आपने लिखा है। एक और बात, ये जो आप इक्वल टू सिंबल देख रहे हैं यहाँ, ये प्रिंट में हमने डेकोरेशन के लिए दिया है, प्रिंट में हमने डेकोरेशन के लिए दिया है। ये इक्वल टू और ऊपर जो लाइनें, 3 लाइनें, उनका इक्वल टू, उनमें जो इक्वल टू देख रहे हैं वो सेम नहीं है फ्रेंड्स। हम जो प्रिंट नहीं, ऊपर की लाइनों में जो इक्वल टू देख रहे हैं, इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। It is used to assign, that means give a value to a variable. इसका पर्पस है, ओके, टू असाइन अ वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू, और ये वैल्यू हम दे रहे हैं इस वेरिएबल को बेस। यहां मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके लिए, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, बेस इक्वल टू 25। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर असाइनिंग or giving the value 25 to the variable named base। हम वैल्यू दे रहे 25 किसको? एक वेरिएबल को जिसका नाम है बेस। समझ में आ गया आपको? ये इक्वल टू, कौन सा इक्वल टू? जो इन 3 लाइनों में है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। और मैंने कहा ये जो इक्वल टू देख रहे हैं आप प्रिंट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, ओके, ये आपके स्ट्रिंग का हिस्सा है और ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए, समझते हो? डेकोरेशन, प्रेजेंटेशन के लिए है। अब इसके बाद मैं कॉमा, डबल कोट्स के बाद मैं कॉमा दे रहा हूं, और कॉमा देने के बाद मैं एरिया वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं। नोटिस कीजिए, एरिया वेरिएबल का नाम मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा है, मैंने बिना डबल कोट्स के ये वेरिएबल का नाम लिखा है। लास्ट सेशन मैंने आपको ऐसा ही एक सवाल पूछा था जब हमने एज लिखा था, एज, और वहां पर भी ये बात हुई थी कि हम वो वेरिएबल एज को डबल कोट्स में लिखें या ना लिखें। तो मैंने वहां पर भी कहा था कि वेरिएबल के नाम जब होते हैं प्रिंट में, उन्हें डबल कोट्स में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो नाम दिखेगा आपको, एरिया, AREA, और डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो वो वेरिएबल समझा जाएगा और उसकी वैल्यू दिखेगी आपको। अब इस तरह से हमें आउटपुट जो आएगा, आउटपुट में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू
जैसे है वैसे दिखाई देगा, और उसके बाद हमें एरिया का वैल्यू दिखाई देगा। एंड लेट मी टेल यू, ये जो हमने कॉमा दिया है, ये कॉमा आउटपुट में अपनी तरफ से, ओके, वैसे तो प्रिंट कमांड में हमने इस स्ट्रिंग को और इस वेरिएबल को अलग अलग करने के लिए बीच में कॉमा दिया है, बट आउटपुट में ये कॉमा अपनी तरफ से एक स्पेस देगा। मतलब ये जो ये मैसेज खत्म होगा और ये जो एरिया की वैल्यू दिखाई देगी, उनके बीच में एक स्पेस होगा, और वो स्पेस इस कॉमा ने दिया होगा हमें। सेव कर रहा हूं मैं अपना प्रोग्राम, रन कर रहा हूं, आउटपुट दिखा रहा हूं। नोटिस कीजिए आउटपुट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू के बाद हमने कोट्स खत्म किया था और कॉमा दिया था, तो नोटिस कीजिए इक्वल टू के बाद जो स्पेस आ रहा है, एक स्पेस, वो कॉमा अपनी तरफ से दे रहा है हमें, और एरिया का वैल्यू नजर आ रहा है हमें। एरिया ARE नाम नहीं नजर आ रहा है, वैल्यू नजर आ रही है। केयरफुली देखिए आउटपुट को। नोटिस कीजिए, ये देखिए मैंने इक्वल टू के बाद कोट्स खत्म किए, मींस मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया। इक्वल टू के बाद नोटिस कीजिए यहां पर, यहां से यहां तक कोई स्पेस है क्या इक्वल टू के बाद? तो आउटपुट में जो हमें स्पेस आ रही है वो कौन दे रहा है? ये कॉमा दे रहा है। और क्या है ये पर्पस कॉमा का? हमें दो चीजों को एक ही प्रिंट कमांड में एक ही लाइन में दिखानी है। दो चीजें या कौन सी दो चीजें? एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल, ये हो गई दो चीजें। इन दो चीजों को हमें एक ही लाइन में दिखाना है, एक ही प्रिंट कमांड की मदद से। मेरी तरफ से ये डिस्कशन खत्म हुआ इस प्रोग्राम का। आपके कोई सवाल है क्या प्लीज? मेरा डिस्कशन यहां खत्म होने आएगा आज के लेक्चर का। कोई सवाल है प्लीज? कोई डाउट है आपके? और एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, तो ये होमवर्क हो गया। ओके, ये प्रोग्राम नंबर 2 हो गया, और ये हो गया प्रोग्राम नंबर 3। हम 1 कर चुके आज। और एक होमवर्क और करना है होमवर्क आप सबको। लेक्चर में मुझे 5 मिनट पहले होमवर्क आपको सबमिट करना है। चैट बॉक्स में आप जाते हो तो उधर फाइल लिखा हुआ होता है, उधर क्लिक करेंगे और आप मुझे फाइल भेजेंगे। हिंट दे रहा हूं, फॉर्मूला एरिया इक्वल टू एस स्क्वायर या एस इंटू एस। हिंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होमवर्क है आपके लिए। अब मैं सेव कर रहा हूँ, एक नॉर्मल फाइल है, पाइथन फाइल नहीं। होमवर्क आज का। ओके, कोई डाउट आपको? अच्छा फ्रेंड्स, my request, I'll be posting this on the YouTube, so please share it with your friends and relatives. Please subscribe to our channel, and please, if you can revise this video. If you want to revise, you surely welcome, and please
click on the like button or put your comments, please. Okay, I'm open for any query. 1 minute more. I have another session, that's why. So please be quick. Next, we are meeting on Saturday. Okay, to continue. Kindly revise these concepts. आज जो मैंने लास्ट सेशन जो दो थियोरेटिकली किया, आज वो पूरा प्रैक्टिकली हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपको प्रोग्राम्स किए उसके ऊपर. वैसे आज इनपुट सिखाना था, पर कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट सेशन करेंगे. अगर हमारा सैटरडे को लेक्चर हुआ होता तो आज हम इनपुट कर रहे होते, आगे गए होते. ओके, हम रुकते हैं यहाँ पर. प्लीज, आपको कोई क्वेरी नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इसके बाद हम कोर्स कंटिन्यू करेंगे अपना पाइथन का कोर्स. सुचिता से आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ दैट कोर्स इफ यू वांट. मैं थोड़े लेक्चर्स में बिजी रहता हूं. हमारे ग्रुप में सुचिता है, मेरी स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, सीनियर स्टाफ, उससे आप बात कर सकते हैं. ओके, आप अभी मीटिंग छोड़ सकते हैं प्लीज, एक एक करके. और क्वेरी है तो रुकिए, आप पूछिए मुझे क्वेरी अगर आपको है तो, और बाकी क्विक मीटिंग छोड़ सकते हैं प्लीज. मैं कुछ और पार्टिसिपेंट्स को लेने वाला हूं, मेरे 11 o'clock सेशन के पार्टिसिपेंट्स को. प्लीज, यू कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द मीटिंग्स इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी. हेलो, हेलो, मॉर्निंग बोलो. गुड मॉर्निंग. थोड़ी देर पाइथन का. ओके, मैं आपका टेस्ट आज लेने वाला हूँ. मैं आपको व्हाट्सएप पे इमेज भेज रहा हूँ. पे आपको अलग अलग इमेज भेज रहा हूँ. आपको ये प्रोग्राम्स करके मुझे 1.5 घंटे में भेज देने हैं. ओके, मुझे आपको जीमेल करके भेज देने हैं. मुझे 1.5 घंटे बाद आपके जीमेल पे मिल जाना चाहिए मेल. ओके, आप भेजेंगे उतने मार्क्स आपके कम होते जाएंगे, प्रोपोर्शन मिनट्स जितने लेट भेजोगे. ओके, और आपको, हाँ, आपको कोई बुक खोल के करना है, कैसे भी करना है, कुछ भी करो, पर ये प्रोग्राम्स को मुझे बनाकर आपको देना है. एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना है. वो करने जाओगे आपका टाइम जाएगा. आई एम श्योर अबाउट दैट.
1.5 घंटे में मुझे आ जाना चाहिए। 1.5 घंटे के बाद आप जो भी करोगे, 1 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, उतना मैं प्रोपोर्शन में मार्क्स कम करते जाऊंगा फ्रॉम द टेस्ट। समझो ये टेस्ट मानो जैसे इसमें 5 प्रॉब्लम्स है। पांच प्रॉब्लम्स है, तो 5 प्रॉब्लम्स लगभग 15 मिनट्स के हिसाब से इट शुड टेक यू यू नो 15 मिनट्स के हिसाब से इट शुड टेक 1 आवर 15 मिनट्स, और एक्स्ट्रा 15 मिनट्स है आपके पास। ओके, मैं मीटिंग को कनेक्ट नहीं करूंगा, आपका जीमेल आ जाएगा, मुझे मोबाइल पे मिल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, आपने जीमेल रजिस्टर हो जाएगा कितने बजे आपने भेजा है, बरोबर? Yeah. सो देयर विल बी नो एक्सक्यूज, वो जीमेल बता देगा कितने बजे आया है मुझे। अच्छा, अभी उससे उधर उस पे कागज पे अभी मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। ओके, इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। एक मिनट। एक सेकंड प्लीज।